Good morning, everyone. So let's start with all the cases that I have given you yesterday, and in which we were supposed to understand that which all dimensions of the business environment is getting affected. So let's understand each of the dimensions related to each of the question one by one. So I'm going to share the screen now. Please look into the screen and I'll be asking you the question. Okay. So the first question that we have here is, this is from the board review question that we have. So a recent rate cut, just wait. Okay, a recent rate cut in the interest rate on loans announced by the banks, announced by the banks encouraged Amit, a science student of Progressive School, to take a loan from the State Bank of India to experiment and develop cars to be powered by fuel produced from garbage. He developed such a car and exhibited it in the science fair organized by the Directorate of Education. He was awarded first prize for his invention. Identify which dimensions of business environment is discussed here. Okay. Okay. So I'm receiving the answer economical and technological. मगर आपको आंसर ऐसे नहीं देना है आज बच्चे. आज मैं आपसे आंसर कैसे पूछूंगी? आज मैं आपको अनम्यूट करूंगी और फिर आप बोलेंगे और बताएंगे कि आंसर क्या है, राइट? मीनवाइल आप आंसर मुझे लिखकर भेज सकते हैं, मगर मैं आपको मौका दूंगी बिल्कुल आंसर करने का. ओके, so Krishna, you are going to speak up the answer for this question. Yes, tell the class what is the answer of this question and through which line were you able to assess that this is the answer which is getting reflected. This is the dimension which is getting reflected from this point which is written in the question. Yes, Krishna, unmute कर दिया है मैंने आपको, बताइए. मैम, रेट कट इन इंटरेस्ट ऑन लोन. कृष्ण बच्चे, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही. क्या आपकी आवाज बाकियों को आ रही है? आई एम डाउटफुल, अ लिटिल डाउटफुल. हेलो. ओके, इज ही ऑडिबल टू ऑल? प्लीज राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स. इज ही ऑडिबल? बिकॉज आपकी आवाज कृष्ण मुझे बहुत हल्की आ रही है. नो, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑडिबल. ओके, कोई नहीं. So let me have somebody else on the board. Krishna, बच्चे आप बताएंगे प्लीज. आपको भी मैंने अनम्यूट कर दिया है. अब आप आंसर बताइए इसका. Ma'am, I have to read this thing. No, बच्चे, you have to only tell me the answer. And very good, you are very much audible to all. So that means we can go ahead with the system. So you have to tell me what is the answer of this case study first, and then which point is highlighting that dimension. That means what is written in Ma'am, I haven't done these questions yet. Okay, very good. तो मतलब हमारे पास आंसर आपसे भी नहीं आएगा. Okay, so let me ask somebody else. Krishna, please आप अपने आप को अभी म्यूट कर लीजिए. अंश भार्गव, सेक्शन ए, मैंने आपको अनम्यूट किया है. अंश, अपने आंसर बताइए इसके. Ansh, can you hear me? Okay. Yes, Ansh, आपसे ही बात कर रही हूँ मैं. You have to tell the answer. I think we all can hear every other voice and noise, despite the fact that yes, ma'am, not able to hear the answer. Yes, बताइए. इसका डायमेंशन है इकोनॉमिक. इकोनॉमिक, ओके. इकोनॉमिक कहाँ से समझ में आ रहा है कि आपका इकोनॉमिक है?
क्या पढ़ा है आपने इस क्वेश्चन के अंदर जिससे आपको इकोनॉमिक समझ में आ रहा है? a recent rate cut in interest on loans Okay. वाली line से. Okay, a recent rate cut in the interest on loans is saying that this is an economic dimension. और उसके अलावा और कोई dimension जिसके अंदर समझ में आया आपको? Develop cars to be powered by fuel produced from garbage, ये technological है. Okay, कोई भी और dimension जो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर? कोई और dimension? No. Okay, thank you अंश. Yes, म्यूट कर लीजिए अपने माइक को और let me show the answer to the class. So the answer for this question is, one second. Okay, so this is the answer of the question, and that is the first dimension that has been discussed here is the economic environment, and which has been covered from the reference line, a recent cut in the interest on loans announced by bank. And then next is technological environment, and which is referred by the reference line, developed cars to be powered by fuel produced from garbage, right? Developed car to be powered by fuel produced from garbage. ये बात की जा रही है. आगे जाकर जो इसका नेक्स्ट डायमेंशन इफेक्ट होगा वो होगा सोशल एनवायरनमेंट, क्योंकि जब आप गार्बेज को यूज करके फ्यूल प्रोड्यूस करेंगे तो वो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, राइट? तो इस केस में ये सोशल होगा, मगर फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं, सो इट इज ओनली इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल. ओके ओके, इसके अलावा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हमारी नेक्स्ट केस स्टडी. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, नोबडी हैज एनी डाउट इन दिस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, so next question is, with the change in the consumption habit of people, Nilesh, who was running a sweet shop, shifted to chocolate business. On the eve of Diwali, he offered chocolate and attractive packages at reasonable prices. He anticipated huge demand and created a website, chocolove.com, for taking orders online. He got lot of orders online and earned huge profit by selling chocolates. Identify and explain the dimension. So which dimension is it getting affected? Yes. So what I'm going to do right now is I'm going to change the setting, and I'm going to just ask you to unmute yourself and answer the question. Okay, so this question goes to Aryan Singh. Aryan, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और मुझे ये भी बताएंगे आप साथ में कि कौन सा आपका लाइन रीड करके आपको ये आंसर समझ में आ रहा है. ओके, मीनवाइल बाकी बच्चे मुझे अपना आंसर चाहें तो लिखकर दे सकते हैं यहाँ पर चैट बॉक्स में. दैट इज कंप्लीटली private for me, so I can only read it, nobody else can read it. But Aryan, I think Aryan has joined the meeting today. Yes Aryan. Yes ma'am. Please बताइए अपना आंसर क्या है आपका. Ma'am, पहली line, with the change in the consumption habits of the people, Nilesh, who was running a sweet shop, shifted to chocolate business. social है. ये कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट है? ये सोशल डायमेंशन. ओके, ये सोशल डायमेंशन है. और उसके बाद मैम फिर anticipated huge demand and created a website for taking orders online, technological. Okay, any other? And he got chocolove.com वाली line है. Okay, so the two dimensions which are getting predicted from here is, one is your social, the other one is social because we Nilesh is trying to earn the profit by using the festival like Diwali, so that is affecting the social environment, and through the use of website, that is chocolove.com, he is using the technology so as to earn more profits in the business, right? So in that case, both the environment which is getting affected is social and technological. Okay. Okay, there is one doubt here which I have just received. Thank you Chinmay for letting me know कि slides में आंसर दिख रहे हैं आप लोगों को, मतलब यहाँ पर जो खुला हुआ है उसमें आंसर दिख रहा है. Okay, okay, last line में लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक भी तो होना चाहिए. He got lot of orders online and earned huge profits by selling chocolates. He got lot of orders online. ये environment नहीं हुआ बच्चे, देखिए समझिए दोनों में फर्क क्या है, आप वो समझने की कोशिश कीजिए. हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि हम डायमेंशंस को पढ़ रहे हैं.
हमने 5 डायमेंशंस पढ़े, तो हर एक डायमेंशन में जो भी चेंजेस होंगे वो बेसिकली इंश्योर करेगा कि बिजनेस को प्रॉफिट हो, राइट? तो प्रॉफिट तो एक रिजल्टेंट फैक्टर है, एक आउटकम है जो कि मिलना है. सो नाउ इफ वी आर लुकिंग एट कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी को यूज किया. आप यहाँ पे देखेंगे कि बिजनेस को प्रॉफिट होना इकोनॉमिक फैक्टर नहीं हुआ. अगर इकोनॉमी में कुछ चेंज होता, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि रिसेंट कट इन द इंटरेस्ट रेट बाय द बैंक, तो वो एक इकोनॉमिक फैक्टर था जिसके चेंज होने की वजह से बिजनेस को चेंज करना पड़ा खुद को और प्रॉफिट अर्न किया बिजनेस ने, राइट? तो ये जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ये तो रिजल्टेंट है किसका? आपने जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया उसका, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे जो फैक्टर इकोनॉमिक डायमेंशन आप कह रहे हैं वो इकोनॉमिक डायमेंशन यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा. ओके, okay, we have got, I think I have cleared this point of economic dimension ki economic dimension क्यों नहीं आएगा. And then next is, ma'am, in question it is mentioned that after identifying explain, so do we have to do we have to explain also or simply give the definition? So you have to basically identify the dimension first, then write down the reference line with which you have concluded that this is the dimension which is getting affected. And after doing that you have to explain means based, अगर जैसे ये 3 नंबर का है तो आपकी explanation कितनी रहेगी बच्चे? आपको पता है, राइट? आप उसका सिर्फ मीनिंग लिखेंगे और उसको कंक्लूड कर देंगे. और अगर आपके लिए यही सेम क्वेश्चन जिसमें से 2 ही डायमेंशन अफेक्ट हो रहे होते, अगर तो ऐसा होता तो, पर ऐसा होगा नहीं, तो उस केस में आप अपने डायमेंशंस को एक्सप्लेन भी करेंगे और उसके जो आपके फैक्टर्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनको भी बताएंगे, राइट? मगर फिलहाल यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करना है, मतलब राइट डाउन द डायमेंशन विच इज गेटिंग इफेक्ट अलोंग विद द रेफरेंस लाइन, एंड अलोंग विद दैट प्लीज राइट डाउन the meaning of that dimension, only the meaning and nothing else. Okay, okay, मैम ये इकोनॉमिक क्यों नहीं है वो प्लीज रिपीट कर दीजिए. ओके, तो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन बता रहा है ना, कॉज वो इनोवेशन वाला पॉइंट आ जाएगा. ओके, अट्रैक्टिव पैकेजेस. On the eve of Diwali, he offered chocolates and attractive packages at reasonable price. He anticipated. Okay, तो आपने इनोवेशन किया अट्रैक्टिव पैकेजेस के फॉर्म में, आपने वेबसाइट क्रिएट की chocolove.com, वो भी टेक्नोलॉजी है. तो दोनों चीजें, मतलब बाय यूजिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ इनोवेटिव टेक्निक लाइक चेंजिंग द पैकेज और क्रिएटिंग अ वेबसाइट, both are reflecting to the same dimension which is technological dimension. और उसके अलावा अनुष्का बच्चे, आपका जो डाउट है कि इकोनॉमिक क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं है इकोनॉमिक क्योंकि यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर या फोर्स, अगर आप देखते हैं, आपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ा है ऑलरेडी, उसको देखेंगे जब आप, तो कोई भी ऐसा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा जिसकी वजह से बिजनेस के एनवायरनमेंट को इफेक्ट पड़ रहा, बिजनेस के ऑपरेशंस को फर्क पड़ रहा है, राइट? जो चेंजेस हो रहे हैं डायमेंशन में, वो एक तो हो रहा है सोशल एनवायरनमेंट का चेंज, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिवाली आ रही है, राइट? और दूसरा आप देख रहे हैं कि उसी एनवायरनमेंट के बेनिफिट को एनकैश करने के लिए जो बिजनेस ने यूज किया है, वो यूज किया है इनोवेटिव पैकेजेस और साथ में वेबसाइट को क्रिएट करके ऑर्डर्स को ऑनलाइन लेना. तो ये जो 2 चीजें हैं, इन दोनों चीजों की वजह से आपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, या ऐसा कहूं कि आपने अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया और उसको एक्सप्लॉइट किया, जिसकी वजह से बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया. तो बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नहीं है, वो बिजनेस का रिजल्ट है कि वो उसने कितना फ्रूटफुली इस एनवायरनमेंट को यूज किया है so as to earn the profit that it has generated, and which is written in the last line of the case. Okay everyone, so let's move on to the answer. So answer पढ़ लीजिए सब लोग. यही सेम आंसर अभी हमने डिस्कस किया है, that is social environment change in the consumption habit of people implies a variation in the social habit of the consumer. And technological environment में है created website chocolove for taking online orders. और जैसा कि वैदिक ने बताया, उसने भी सही बताया है कि आपने जो इनोवेटिव पैकेजेस यूज करने शुरू किए, अट्रैक्टिव पैकेजेस यूज करने शुरू किए, so as to increase the demand of the product is also going to be considered under a technological environment only. So both are correct. Okay, I hope there are no doubts remaining in this slide. So let's move on to the next case study. And next case is
Okay, so this is the third case which we have. So it is Ascent Electronics Limited was operating its business in Malaysia. The company started exporting its product to India when the Prime Minister announced the relaxation in import duty on the electronic item. The company appointed retailers in India who had direct online link with the suppliers to replenish stock when needed, identify and explain the dimension of the business environment discussed in the above case. Okay, so okay, I'm receiving a lot of answers for this. Palak, बच्चे अनम्यूट कीजिए खुद को और आंसर बताइए इसका क्या है आंसर इसका. You can unmute yourself. Yes, ma'am. From the point the company started exporting after Prime Minister announced relaxation, this indicates that it is political dimension, and because it uses online links with the suppliers to replenish stocks when needed, so it is technological. Okay, wonderful. Anybody else who has got any doubt in it, please write it down in the chat box. I think बच्चे जिसको एक बच्चे को doubt हुआ था इस question पे, I think your doubt has been answered very well by Palak. Anybody who has got any other doubt in this? Okay, let me go back to this doubt question. किसका doubt था ये? इशिता, बच्चे आपका doubt था ये question में. I hope your doubt has got answered. पलक ने बिल्कुल सही बताया कि आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है the company started exporting its product to India when the Prime Minister, कंपनी ने कब स्टार्ट किया एक्सपोर्ट करना इंडिया को प्रोडक्ट टू इंडिया, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया रिलैक्सेशन इन द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. अगर ये रिलैक्सेशन नहीं मिलता एसेंट इलेक्ट्रॉनिक्स को तो वो मलेशिया में ऑपरेट कर रहे थे, वो वहीं ऑपरेट करते, दे वुड हैव नेवर एंटर्ड इनटू द इंडियन मार्केट, राइट. तो ये उनको मिला पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का बेनिफिट. और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या इंक्लूड करता है, आपका कौन सा फोर्स इंक्लूड करता है? दैट ऑल द बिजनेस फर्म्स, what kind of perspective that ruling party has for them in their minds. So if they are going to have a favorable mindset towards the business, so the policy that they are going to make is going to actually give an advantage to the business organization. Okay, और दूसरा पॉइंट जो है, a company appointed retailers in India who had direct online links, मतलब यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी को. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बिल्कुल वही है जो अभी हमने डिस्कस किया, विच इज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, सॉरी पॉलिटिकल. यस, ओके ओके ओके, सो वी हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग. पॉलिटिकल यहाँ पे क्यों नहीं लिया है? यहाँ पे देयर इज अ लिटिल चेंज बच्चे. यस, बिकॉज जो इंपोर्ट ड्यूटीज में रिलैक्सेशन हुआ है वो एज अ स्कीम लॉन्च किया गया और उसको एज हमने लॉ उसको यूज किया गया है, इसीलिए इसको लीगल लिया गया है और पॉलिटिकल नहीं लिया गया है. मतलब इट हैज लेड टू द पॉलिटिकल कैंपेन व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हैज बीन मेड अ रिफॉर्म. तो अब वो रिफॉर्म बन चुका है. जो हमने एक पॉइंट जो यहाँ पे मिस कर दिया वो ये है कि दिस प्राइम मिनिस्टर whatever that stand that he took was actually made legal now, has got that legal status now, because it has led to the relaxation in the import duties in the electronic items. So this is treated as legal. मगर मैं फिर भी कहूंगी कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, और ये कंफ्यूजन सिर्फ बच्चों को नहीं बट टीचर्स को भी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसा ही कुछ लिखा होगा और उसको पॉलिटिकल ट्रीट कर लिया जाता है, बिकॉज यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं कुछ लिखा हुआ है कि इसका रिफॉर्म बनाया गया, मगर ये अज्यूम किया गया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी ने आपके अनाउंसमेंट किया है उसको रिफॉर्म बनाया जा चुका है, और उसी की वजह से ये डिसीजन लिया गया है to create a relaxation in the import duties in the electronic item, and that is why it is taken as legal. मगर अगर ऐसा कुछ भी confusion point आता है, then I would suggest you कि आप case study में political भी लिख दीजिए और आप legal environment भी लिख दीजिए, क्योंकि doubt में क्या होता है कि कई बार बोर्ड में ऐसा देखा गया है कि marks दे दिए जाते हैं taking into consideration of assumption, right? Okay. उसके अलावा आपका एक्सक्यूज मी मैम. यस बच्चे, कौन बोल रहा है? पहले तो नाम बता दीजिए. मैम आराध्या. यस आराध्या, बच्चे बताइए. मैम जहाँ पे पलक ने अभी पॉलिटिकल बोला वहाँ पे एक्चुअली इकोनॉमिक नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैम द कंपनी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट टू इंडिया.
ये डायरेक्टली इकोनॉमी को इंडिकेट नहीं कर रहा? नहीं, कंपनी इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, और वो इसलिए नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा क्योंकि ये जो चेंज हुआ है, ये कंपनी ने ऑपरेट जो इंडिया में करना शुरू किया वो इसीलिए करना शुरू किया बिकॉज दिस वाज पॉलिटिकल मूव व्हिच वाज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर and this was announced and it became a reform because the answer is reflecting that this is a legal environment, so this took a form of a law जिसकी वजह से रिलैक्सेशन मिला. तो जब रिलैक्सेशन मिला उसकी वजह से एसेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ने इंडिया में एंटर किया है. अगर ये होता ही नहीं, यानी कि ये लीगल या पॉलिटिकल डायमेंशन अगर हमारा इफेक्ट नहीं होता, तो क्या ये पॉसिबल था कि एसेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में आती? नहीं. इसी वजह से हम इसको इकोनॉमिक डायमेंशन नहीं मान रहे हैं. नेक्स्ट, ओके, और कुछ पूछना है आराध्या आपको इसमें? ओके, आई थिंक दिस इज सॉल्व नाउ. उसके ओके, काफी सारे बच्चों ने बोला कि ये लीगल क्यों नहीं है. रिलैक्सेशन वर्ड से यस, बिल्कुल सही कहा कि अनाउंस रिलैक्सेशन, जो रिलैक्सेशन वर्ड है इसी से अज्यूम किया गया है कि ये लीगल एनवायरनमेंट है, और इसीलिए आप और ओके, हमको एक और क्वेश्चन पूछा गया है अभी कि इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन में 3 डायमेंशन भी हो सकते हैं. तो मैं बताना चाहूंगी कि एक क्वेश्चन में 3 क्यों, 5 डायमेंशन आ सकते हैं, और अभी वो आएंगे, तो आप बस साथ साथ चलते जाइए और देखते जाइए. तो टेक्नोलॉजी में कोई डाउट नहीं था, टेक्नोलॉजी वाज वेरी वेल क्लियर टू एवरीबॉडी. द ओनली डाउट व्हिच वाज क्रिएटेड वाज इन द पॉलिटिकल एंड लीगल. तो मैम आपने लास्ट लाइन का आंसर इकोनॉमिकल लिख रखा है, वो टेक्नोलॉजिकल नहीं होगा? यस यस, इट इज टेक्नोलॉजिकल, इट इज टेक्नोलॉजिकल, बिल्कुल सही. मैम ये देखो, अभी मैम एक सेकंड वापस आंसर स्लाइड लेके. द कंपनी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट टू इंडिया. मगर हम ये बात इकोनॉमिक नहीं है, मैं बता रही हूँ अभी. ये देखिए, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है, बिल्कुल. ये इकोनॉमिक नहीं लिया जाएगा. उसका रीजन मैं बता देती हूँ क्यों. क्योंकि कंपनी वाज, फिर से पढ़ते हैं इस केस स्टडी को. द एसेंट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वाज ऑपरेटिंग इट्स बिजनेस इन मलेशिया. द कंपनी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग ऑपरेटिंग इट्स बिजनेस इन मलेशिया. द कंपनी स्टार्ट, देखो ये जो लाइन है वाज ऑपरेटिंग इट्स बिजनेस इन मलेशिया, तो वो तो बिजनेस मलेशिया में कर रहे हैं. ये तो हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो बिजनेस कर रहे हैं मलेशिया में. उससे कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर इफेक्ट नहीं हो रहा है. उनका ऑपरेशन है, उससे क्या हमको कुछ भी डायमेंशन इफेक्ट नहीं हुआ. Then the company started exporting its product to India when Prime Minister announced the relaxation in import duties on electronic items. तो ये बिल्कुल हम मांगते चलेंगे कि ये हमारा लीगल एनवायरनमेंट है, because this has given a relaxation to the import in account of the import duties on electronic item, and that is why this has been treated as the legal transaction, legal dimension. And the next is the company appointed retailers in India, जो कि यहाँ पे आंसर में बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है, तो ये मेरी गलती है. The company appointed retailers in India who had direct online links with the suppliers to replenish stock when needed. तो ये जो है, ये टेक्नोलॉजी को यूज करके आपने रेप्लेनिश किया है स्टॉक में. तो यहाँ पर कहीं भी इकोनॉमिक नहीं है. ये डायमेंशन आपका लीगल और टेक्नोलॉजिकल ही माना जाएगा. आप इसको ज्यादा से ज्यादा लीगल के साथ पॉलिटिकल भी लिख के समझा दीजिए. इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग दिस रिलैक्सेशन वर्ड, तो आप इसको पॉलिटिकल भी लिख के समझा सकते हैं. तो इन दैट केस आल्सो सम रिलैक्सेशन इन मार्क्स कैन बी गिवन और इट कैन बी कंसिडर्ड. बट इकोनॉमिक मुझे यहाँ कहीं कुछ नहीं दिख रहा. किसी को भी और डाउट है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप अनम्यूट करें खुद को और ये आप मुझे बताएं कि कहाँ इकोनॉमिक अभी भी दिख रहा है आपको और आंसर में गलती है. यस, सो वी कैन एक्सेप्ट इट. बट आई थिंक जो केस स्टडीज होती है, केस स्टडीज हम और बेहतर तरीके से एनालाइज करते हैं जब हम आमने सामने इसको डिस्कस करते हैं. Okay, anybody having any doubt in this question? Anybody else? Okay, so there are no doubts. कुछ शायद आया होगा और चैट बॉक्स में नहीं, और कुछ नहीं आया. Okay, तो अब बता दिया है कि इसके अंदर इकोनॉमिक नहीं आएगा, तो ये आंसर में हम करेक्शन कर लेंगे. अभी मैं इसे एडिट नहीं कर सकती हूँ, तो आपको जब मैं भेजूंगी उससे पहले मैं इसे एडिट कर दूंगी. राइट? Okay, next question is, the court passed an order to polythene bags as these bags are creating many environmental problems which affect the life, which affect the life of people in general, then society in general is more concerned about the quality of life
then government decided to give subsidy to jute industry to promote this business. Innovation techniques are being developed to manufacture jute bags at low rates. Income are rising, people can afford to buy these bags. Identify the different dimensions. Yes, Chinmay would unmute himself and answer the question. Good morning, ma'am. Good morning, Chinmay. बच्चे Ma'am, बताइए. the कोड से पॉलिथीन बैग्स कोड करता है लीगल एनवायरनमेंट को. Okay, wonderful. Next. फिर these bags से क्वालिटी ऑफ लाइफ कोड करता है सोशल एनवायरनमेंट को. ठीक है, बहुत बढ़िया. और फिर गवर्नमेंट डिसाइड से बिजनेस कोड करता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को. Okay. इनोवेटिव टेक्निक्स करता से रेट्स तक कोड करता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. Okay. और इनकम्स एंड टू थिंग्स लास्ट तक कोड्स इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट. Okay. Anybody having any doubt? Chinmay, wonderful it is. और बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 6 नंबर के लिए आया हुआ क्वेश्चन है. किसी को कोई भी डाउट? बिल्कुल सही बताया है चिन्मय ने. मैम एक डाउट और है मैम, इन सबको क्या बोलते हैं मैम? स्टेट भी करना है कि हर एक का मतलब हाँ जैसे जी, लीगल बिल्कुल एनवायरनमेंट. आप इसको आइडेंटिफाई जैसे किया ना आपने, अब आपने उसको बता दिया कि ये कौन सा डायमेंशन को इफेक्ट कर रहा है. अब आप उसका मीनिंग भी बताएंगे कि कौन सा डायमेंशन को वो इफेक्ट कर रहा था. उसका नाम, उसके नाम को लिखिए और उसके मीनिंग को बताइए. राइट, क्योंकि 6 नंबर के लिए है, कम से कम 6 नंबर में इतने तो जरूरत पड़ेगी ही मटेरियल को जो आप लिखेंगे. तो आप कम से कम उसका जो मीनिंग है उतना तो एक्सप्लेनेशन दीजिए. पर आपने 5 डायमेंशंस बता दिए हैं. 5 डायमेंशंस के बताते ही 5 नंबर तो आपके वैसे ही फिक्स हो गए. अब 1 नंबर आपका जो आपने एक्स्ट्रा लिखा है उन सब चीजों के बारे में, उसको मिलाकर हो जाएगा. ओके, बट बिफोर मूविंग टू द चैट, लेट मी go back and solve this question again, जो कि चिन्मय ने ऑलरेडी अभी सॉल्व किया हमारे लिए. कि कोर्ट पास्ड इन ऑर्डर टू पॉलिथीन बैग टू बैन पॉलिथीन बैग्स. ये हुआ हमारा लीगल क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है. Then these bags are creating many environmental problems, or society in general is more concerned about the quality of life, is social environment. Government decided to give subsidy to jute industry to promote this business. Is a government this move which it is taking to give subsidy to the jute industry. तो ये रहा political environment. Then innovative techniques जो यूज किए जा रहे हैं लो रेट्स में जूट बैग्स को बनाने के लिए, वो है हमारा टेक्नोलॉजिकल environment. Then incomes of the people are rising and people can afford to buy this new bags now. So this is showing the standard of life, the standard of living which is increasing, the income is increasing. So this is showing the economic environment. So these are the 5 environment dimensions which are getting affected in this one question. So Lakshya, I think आपका क्वेश्चन आंसर हो गया बच्चे, कि किसी एक क्वेश्चन में हमको डायमेंशन ज्यादा भी होंगे, बिल्कुल होंगे, या आप आंसर रेफर कर लीजिए. किसी को कोई भी डाउट है तो वो डाउट अपना चैट बॉक्स में लिख कर दीजिए. ओके, मीनवाइल आई जस्ट रीड द चैट. ओके, एक्सक्यूज मी मैम. यस अंशुल. मैम असाइनमेंट में मैम बार-बार लिखनी है कि सबकी डेफिनेशन? नहीं, आप बार-बार मत लिखिए. आप एक बार लिख दिया ना आपने, बस किसी एक क्वेश्चन में. जैसे अब ये 5 यूज हो रहे थे, है ना, तो इन 5 को आपने एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरीके से. कोशिश किया कीजिए कि 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है उनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते ही जो आपके 1, 3, 4, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर उसमें कुछ रिपीटेशन है तो वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है वहां पर. राइट, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो 6 मार्क्स के पहले प्रायोरिटी देके आप सॉल्व कीजिए, और उसके बाद 1, 3, 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई भी रिपीटेशन है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, उसको आप छोड़ सकते हैं. ओके, अब मैं जरा दूसरे बच्चों के भी डाउट्स देख लूं जो हमारे पास अभी लिख कर आए हैं. तो इशिता का डाउट है, मैम गवर्नमेंट गिविंग सब्सिडी इज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और लीगल? इट इज पॉलिटिकल. राइट, तो ये पॉलिटिकल है. आपका क्वेश्चन आंसर हो चुका है. देन नेक्स्ट है हमारे पास डाउट कि मैम लास्ट लाइन में सोशल भी तो हो सकता है ना, क्योंकि उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो रही है. सो इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल होना चाहिए ना लास्ट लाइन में. ओके, हम देख लेते हैं लास्ट लाइन को वापस जाकर. ओके, सो लास्ट लाइन इज सेइंग इनकम इज राइजिंग एंड पीपल कैन अफोर्ड टू बाय दीज बैग्स. ओके, इनकम इज राइजिंग and people can afford to buy these bags. अगर income is rising है तो हम फोकस यहाँ पे किसमें कर रहे हैं वैदिक? हमको हमेशा याद रखना है कि हमारा फोकल पॉइंट क्या है. यहाँ पे फोकस पॉइंट ये है कि इनकम बढ़ रही है, मगर जो आप कह रहे हैं कि इनकम जब बढ़ेगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा,
कि क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की बेहतर हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हम सोशल डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं वो भी अपने आप क्रिएट होगा। ऊपर आप देखिए, सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऊपर इस पॉइंट के बारे में ऑलरेडी बात की जा चुकी है सोशल डायमेंशन में, तो इसी बात को हम दोबारा से हमको करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार जो लिखा हुआ है उसके बेसिस पे बता दिया कि वो सोशल डायमेंशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है उसमें हम सिर्फ इतना ही कंसिडर करेंगे कि इनकम इज राइजिंग। मगर अगर ये नहीं लिखा होता और आप प्रिज्यूम करते कि बिकॉज ऑफ द राइज इन इनकम द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल विल ऑल्सो इम्प्रूव, तो ये सोशल एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट कर रहा है, ये आप एज एन एडिशन लिख सकते हैं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशन। मतलब इकोनॉमिक को इग्नोर करके आप नहीं लिखेंगे, उसके साथ में अगर सरप्लस में लिख रहे हैं तो ये चल जाएगा। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। यस, टेल मी योर नेम बच्चे। मैम तो पहले हमको, मैम कृष्ण। हाँ कृष्ण, बताइए। मैम तो हमको इन सारी केस स्टडीज में रिजल्ट को इग्नोर करना है? देखिए, रिजल्ट को इग्नोर नहीं करते, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना आप उस पे फोकस कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी की दी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो बिजनेस को प्रमोट करना इज अ रिजल्ट ऑफ द सब्सिडी विच गवर्नमेंट इज गिविंग। तो हम किस डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल डायमेंशन के बारे में। सिमिलरली लो आपका जो आप टेक्नोलॉजी यूज करके लो प्राइजेस या लो रेट्स के जो जूट बैग्स बना रहे हैं, तो वो जूट बैग्स बना रहे हैं लो रेट्स के लिए, तो वो किसके लिए बना रहे हैं? सोसाइटी के लिए ही बना रहे हैं, तो वो सोशल डायमेंशन भी हुआ। मगर हमारा फोकस किस पे है? दैट वी आर क्रिएटिंग दोज बैग्स यूजिंग इनोवेटिव टेक्निक्स। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या हुआ और क्या होने से क्या होगा। तो क्या होगा तो बहुत कुछ हम कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं कि हमने इनोवेशन टेक्निक्स यूज की, तो टेक्नोलॉजी हमारा डायमेंशन यूज हुआ। अब इसे कनेक्ट करें तो हम बात करते हैं कि लो रेट्स पे बैग्स अवेलेबल हुए, तो ये एक सोसाइटी को बेनिफिट हुआ, सोशल एनवायरनमेंट। ओके, अब ये हमारे जो लोगों के पास, लोगों को और बेहतर प्रोडक्ट मिलेगा, तो इससे हमारे लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो भी इंप्रूव हो रहा है, एक और सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर। तो ऐसे तो हम बहुत सारे उसके, और इससे फिर ऑटोमेटिकली क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी डाल दो। तो ऐसे बहुत कुछ हम रिलेट कर सकते हैं और ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। मगर हमको फोकस करके आंसर क्या लिखना है? जो क्वेश्चन, जो पार्ट हमारी केस स्टडी में लिखा है, राइट? जो केस स्टडी में लिखा है आपको सबसे पहले उसे पढ़ना है और उसी को ध्यान रखकर अपना आंसर देना है। उसके अलावा आपको कुछ भी जो एडिशनली लगता है, आप कुछ भी लिखेंगे एडिशनली क्वेश्चन में, आंसर के अंदर उसके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। मगर जो रिक्वायर्ड है, जो मांगा गया है, वो लिखना पहले जरूरी होता है, राइट? उसके अलावा आप एक्स्ट्रा लिखने के लिए बिल्कुल फ्री है, जो लिखिए आप। ओके, आई थिंक ये मेरे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का है, वो डाउट आपका कंप्लीटली अब रिजॉल्व हो गया है। देयर आर नो मोर डाउट्स लेफ्ट। ओके, उसने भी बच्चों बताया वो बिल्कुल डाउट सॉल्व हो चुका है। अब हम आगे चल सकते हैं। हमारा जो क्लास है अभी वो टाइम अप होने वाला है 1 मिनट में, तो एक काम करते हैं, हमारे ये क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। सो आई एम एंडिंग दिस मीटिंग राइट नाउ। लेट्स कनेक्ट अगेन इन 2 मिनट्स टाइम, और फिर हम वापस से शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट केस स्टडीज जो मैंने आपको सेंड किए थे। ओके, आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू एवरीबॉडी एंड नोबडी हैज एनी अदर Yes, डाउट। ma'am. ओके, थैंक यू। सो let's meet again. Thank you, ma'am. Thank you.